Hello students, here in this topic we are going to see types of friction. Okay, see, actually we all know that friction is the opposing force. Okay, it is always opposing the motion. Suppose that you have a box, okay, and you are applying the force in this direction, the friction will always in the opposite direction. Okay, but what are the different types of friction? Okay, see, actually the friction is divided into mainly two parts, two types. First one is static friction. Okay, the type of friction that comes into play when the object is not moving. When the object is not moving, then the friction acting on that object is known as static friction. And when the object starts moving, then the friction that comes into play in its surface, that is called kinetic friction or dynamic friction. This kinetic friction is also known as dynamic friction. We will see one by one. Okay, see, static friction is also divided into two parts. First one is self adjusting friction. Okay, first part of static friction is self adjusting friction, and the second part is limiting friction. We will see one by one that what is self adjusting friction and what is limiting friction in very easy language. Next is kinetic friction. This is also divided into two parts. Okay, first one is sliding friction and the second one is rolling friction. Okay, these are the two types of kinetic friction and these are the two types of static friction. Okay, but before going to the discussion about these types of friction, let us understand the once again that the balancing force. What is the balancing force? See, take example. Now suppose that on the surface a box is kept there. Okay, suppose a box is kept there and you are applying a force on this direction. Suppose that 10 Newton. Okay, you are applying force and your friend is also applying the force in this direction, that is also in 10 Newton. Both are in opposite direction, then where the box will move, the box will not move. The velocity or the speed of the box will be zero. The box will not move. Okay, why? Your force is balanced by your friend's force. You are applying force in this direction and your friend is applying force in this direction, then your force is balanced by your friend. Okay, that's why the object is not moving. Okay, this is called balanced condition. Okay, and balanced force, these two force are balanced force. Okay, now think another condition, that suppose in the same condition you are applying a force in this direction 10 Newton and your friend is applying in opposite direction, that is 7 Newton, then you are applying the greater force, therefore, and your friend is not applying the force as you are applying. See, in this condition this box will start moving in this direction. Why? Because these are not balanced force. Okay, you are applying greater force and your friend is applying lesser force than you, then the box will start moving in this direction. Okay, this is called unbalanced force. Okay, now clear? When the object will move when there is a balanced force. ओके, जब ऑब्जेक्ट पे बैलेंस फोर्स काम करेगा तब ऑब्जेक्ट मूव करेगा. ओके, सी, अब आगे देखते हैं वन बाय वन द फ्रिक्शन. सी, first of all we will see the static friction and its type. Okay, the static friction and its type. See,
What is the meaning of static? Static, that means rest condition. Okay. So when an object is at rest condition, the friction that comes into play in it is called static friction. See, the opposing force that comes into play when one body try to move over the surface of the other body but the object does not move. ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन उसको बोलते हैं जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे पे मूव करने की कोशिश तो करता है बट मूव नहीं करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, नाउ सी here in this condition, this is the external force. Okay, and in the opposite direction your frictional force is working. In this condition, if frictional force is equal to the external force, then what happen, they will balance each other. अभी जो हमने देखा था कि अगर ये दोनों फोर्स इक्वल होगा, अगर ये दोनों फोर्स इक्वल होगा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा, और जब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा उस कंडीशन पे ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ठीक है. और इस कंडीशन पे ये जो फ्रिक्शन हमारा है इसको हम कौन सा फ्रिक्शन बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, देन दिस इज द कंडीशन ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन. when you are applying the force on an object, एंड द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो लगा रहे हैं बट ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि जरूर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है. ये फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन है. आप जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फोर्स फ्रिक्शन में भी लग रहा है, जिस कारण वेलोसिटी जीरो. आपका फॉरवर्ड फोर्स जो है, आपका आगे का फोर्स, ठीक है, और फ्रिक्शन जो कि पीछे की ओर लगने वाला फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है और एक दूसरे को बैलेंस करते हैं. जैसे अभी हमने एग्जांपल रखा था, सपोज दैट कि आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन है, तो ये बॉक्स मूव नहीं करेगी. ओके, दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन. सी, नाउ वी विल सी वन बाय वन टाइप्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, first one is self adjusting friction. See, the frictional force that balance the external force, external force को बैलेंस करने वाला जो फ्रिक्शन है, ठीक है, बट बिफोर रीचिंग द लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन से नीचे का जो फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट पे हम लोग लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है, और जिस समय ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है. अभी हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे फिगर से, दैट दिस विल बी वेरी क्लियर टू यू. ओके, दिस इज द सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन. इफ यू थिंक अबाउट द लिमिटिंग फ्रिक्शन, सी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, this is the maximum, limiting friction is the maximum value of static friction that comes into play when the object is about to move. ठीक है, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये उस समय ऑपरेट होता है जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करने के लिए होता है. द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव, मतलब ऑब्जेक्ट जस्ट उसके बाद अगर आप लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स अगर लगाइएगा तो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा. अब देखिए इसको एक बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं. ओके, सी, नाउ सपोज कि एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया, सपोज आपने अप्लाई किया 5 न्यूटन, द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग. ओके, यू इंक्रीज्ड योर फोर्स 6 न्यूटन, स्टिल द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, फिर भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है. आपने 6 न्यूटन से बढ़ा करके 7 न्यूटन कर दिया, फिर भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है. अब जरा इसको इस तरह से समझिए, सपोज दैट कि आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग. इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लग रहा है, 5 लग रहा है, ठीक है. तब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, ठीक है. सपोज कि आपने अप्लाई किया 6 न्यूटन, ठीक है, फिर भी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है. इसका मतलब कि फ्रिक्शन भी कितना लगना शुरू हुआ, अब 6 न्यूटन, ठीक है. अपने आप को ये फ्रिक्शन एडजस्ट करती है.
आपके फोर्स अप्लाई के कारण। ठीक है, सपोज दैट कि आपने अप्लाई किया 7 न्यूटन। ठीक है, फिर भी ये बॉक्स अगर मूव नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन जो है ये अपने आप को इंक्रीज करके 7 न्यूटन कर लिया। ठीक है, ताकि आपके एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर पाए। ठीक है, अब देखिए ये जो कंडीशन है, फ्रिक्शन अपने आप को हमेशा बैलेंस नहीं कर पाती है। ठीक है, सपोज दैट कि आपने फोर्स लगाया 8 न्यूटन। ठीक है, एंड देन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग। जब आपने 8 न्यूटन फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स कि जैसे ही आपने 7 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स इंक्रीज किया तो ऑब्जेक्ट का जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो अब आपके फोर्स को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा। तो ये जो 7 न्यूटन का फोर्स है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, और ये जो 5 एंड 6 न्यूटन का फोर्स है दैट इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। ओके, याद रहे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से जैसे ही आप फोर्स ज़्यादा बढ़ाते हैं बॉक्स मूव करना या ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है। इसीलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 7 न्यूटन यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स अगर आप लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट स्टैटिक कंडीशन में ना रह करके मूव करना शुरू कर देता है। क्लियर? तो सेल्फ एडजस्टिंग किसको बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन से नीचे का जो फ्रिक्शन होता है। ठीक है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन किसको बोलते हैं? तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। ओके, नाउ वी विल सी काइनेटिक फ्रिक्शन। सी the what is kinetic friction? The opposite force, the opposing force that comes into play when one object is moving over the surface of other object। सिंपली इसका मतलब है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे मूव करना शुरू करता है। ठीक है, नाउ सपोज कि आपने यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा का फोर्स लगाया, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट आपके अप्लाई करने वाले आपके फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा है। ठीक है, जिस कारण ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, हमेशा याद रहे कि काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, ये जो फोर्स है आपके फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, नाउ सी वी विल सी टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। द फर्स्ट वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। What is sliding friction? When one object slides over the other, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर स्लाइड करती है, घिसती है। ठीक है, उसको बोलते, उस समय उस ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शन काम करती है दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, द फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग और स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। नाउ थिंक अबाउट दिस बॉक्स। ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये जो बॉक्स हमारा है ये इस सरफेस पे स्लाइड कर रही है। ठीक है, इस समय इस पे जो फ्रिक्शन काम कर रही है, हालांकि ये फ्रिक्शन हमारे एक्सटर्नल फोर्स से ज़्यादा नहीं है बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, दिस फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि ये स्लाइड करते हुए ऑब्जेक्ट के सरफेस पे लग रहा है। ओके, नाउ सी व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन। इफ यू थिंक अबाउट द रोलिंग फ्रिक्शन, सी when one object, okay, when one object rolls over the surface of other object, see what is rolling friction? The friction that comes into play when one body is actually rolling over the surface of other body। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देना है, एक्चुअली रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ अदर। रोलिंग का मतलब होता है गुड़कना। ठीक है, सपोज दैट कि यहाँ पे एक व्हील हमारे पास है, ये व्हील क्या करेगा, ये व्हील मूव करेगी, रोल करेगी इस पे। ठीक है, तो इस व्हील के सरफेस पे, इस व्हील का और इस सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन काम करेगा उसको बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, सी यहाँ पे हम लोगों ने जो अभी एक बॉक्स का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे
ठीक है, ये देखिए, ये जो हमारे पास बॉक्स का एग्जांपल था, ये क्या कर रहा था, स्लाइड कर रहा था। अब अगर इसी बॉक्स में हम एक व्हील लगा देते हैं, चक्का लगा देते हैं, ठीक है, तब ये बॉक्स क्या होगा, रोल करेगा। तब इस बॉक्स के, इस व्हील के नीचे, इस व्हील के और इस सरफेस के बीच में कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, रोलिंग फ्रिक्शन। okay, now I think this is clear that what are different types of friction and what are the different examples. okay, see, if we compare the different types of friction, अगर हम अलग अलग फ्रिक्शन को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, सबसे ज़्यादा जो होता है फ्रिक्शन का वैल्यू, ये होता है सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन में, ठीक है। इससे कम अगर हम लोग बात करते हैं तो ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम का जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और सबसे कम जो होता है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। इसीलिए अगर किसी ऑब्जेक्ट में अगर कोई व्हील लगा दिया जाए, ठीक है, सपोज दैट कि अगर एक बॉक्स यहाँ पे है और आप इसको पुश कर रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट कि अगर एक बॉक्स यहाँ पे है, ठीक है, इस सरफेस पे, और आप इसको पुश कर रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट कि इस पर कौन सा फोर्स काम करेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी तो या तो उसमें सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन काम करेगा या फिर तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, और अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देती है तो कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जरा सोचिए कि अगर इसी बॉक्स के नीचे हम व्हील लगा देते हैं, ठीक है, व्हील लगा देते हैं, अब आप इसको आसानी से पुश कर सकते हैं। इसका मतलब कि इस पर, अब इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो कम लग रहा है। अब इस पर कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स अब काम कर रहा है ये रोलिंग फ्रिक्शन है, जो कि कम होता है और जिस कारण हमें अब कम फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ओके।